Okay, up to now we have laid the foundations of business intelligence. We have also discussed about data warehousing in uh, quite a lot of detail, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि how does it work and what's the relationship of data warehousing with business intelligence. So I request all of you to please mute your mics. So to sum it all up, data warehousing came into existence in 1980s, and the purpose of data warehousing was to basically calculate the aggregates on KPIs. ठीक है, ये उसका पर्पस था कि KPIs को primarily aggregate किया जाए. Or at that time it was a very difficult task because there were large dimension tables and fact tables were of very large sizes. So it was required to buy very expensive hardware. So mostly the hardware was being provided by Teradata and IBM. So it was very expensive, so only the big companies could afford it. But slowly the hardware started to get cheap. But still the data warehousing process was not easy, because you had to make all those star schemas, which is in itself a difficult thing to do. और पुराने ज़माने में हमारे पास कॉन्सेप्ट होता था एंटरप्राइज डेटा वेयर हाउसेस का. So there was one huge warehouse for the whole organization, and everyone used to connect to that. So it was required कि आपके जो जिस सर्वर पे वो होस्ट हो रहा है, that server should have must have had lot of computational power. ठीक है, जैसे आजकल के ज़माने में आप कह रहे हैं कि a server with 128 gigabyte of RAM and several terabytes of hard disk, etc., something like that in those times. तो obviously it was not easy for many companies to manage. तो और फिर दूसरा मसला ये था कि whenever you have this जब आपने अपना स्टार स्कीमा बना लिया है, आई होप ऑल ऑफ यू आर नाउ क्लियर कि स्टार स्कीमा क्या होता है, किस तरह उसके क्या तुक होता है, उसकी डायमेंशनल क्वेरीज क्या होती हैं. So when you make the star schema, then you basically construct the OLAP cube on top of the star schema. ठीक है, तो ये OLAP cube के अंदर मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि it contains all possible aggregated values, that is all possible totals of a KPI across all possible combinations of dimensions. ये चीज़ आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए. ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लीज़ इसका कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर करें, किसी से पूछ लें इसका क्या मतलब है. कि ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि डायमेंशंस के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं. तो जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के अक्रॉस जो मैं टोटल कंप्यूट कर सकता हूँ वो टोटल कंप्यूट होगा, एंड दैट विल बी डन इन द OLAP क्यूब. स्टार स्कीमा इटसेल्फ इज नॉट अ एग्रीगेट एंटिटी. स्टार स्कीमा तो सिर्फ डेटा को OLTP से उठा के आपका एक नए डेटाबेस में लेकर आता है, जिसको हम स्टार स्कीमा कहते हैं, एंड यू बिल्ड द OLAP क्यूब ऑन टॉप ऑफ दैट. ठीक है, तो मैंने बताया था कि लास्ट टाइम प्रॉब्लम ये आती थी कि OLAP क्यूब इज अ वेरी हैवी मल्टी डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर. सही है, तो OLAP क्यूब जाहिर सी बात है जब इतने सारे कॉम्बिनेशंस होंगे और इतनी सारी डायमेंशंस होंगी तो OLAP क्यूब becomes a very heavy multi-dimensional data structure, which was not easy to store efficiently or access. ठीक है, तो there was यानी it required lot of computational power. So वो चीज इतनी आराम से उस वक्त अवेलेबल नहीं थी. OLAP क्यूब was not that much interactive. तो क्या सोल्यूशन क्या निकला था फिर? What was the solution to this problem? Sir, BI tools. BI tools. Then obviously ये बिल्कुल सही बात की है. Then BI tools came into existence. तो BI tools में concept वही है. ठीक है, to solve this problem.
So you have to remember the concept of KPIs, measures, facts, and you have to remember the concept of dimensions. You have to remember KPIs are analyzed across the dimensions. ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है? तो ये बेसिक आपका वो आइडिया था जो हमने लास्ट टाइम दिया था। अभी हमारा जो आज का जो एजेंडा है वो ये है कि वी आर स्टार्टिंग विद ईडीए। ईडीए स्टैंड्स फॉर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। और एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के दो मकसद हैं। पहला मकसद ये है कि रैंगल और क्लीन द डेटा, ठीक है? एंड द सेकंड पर्पस इज टू अंडरस्टैंड द डेटा, understand the data. Data may be, I mean, primarily KPIs with respect to statistical analysis. या इसको हम stochastic भी कह सकते हैं, या stochastic का मतलब होता है based on probabilities and stochastic, ठीक है? With respect to statistical and stochastic analysis. So this is not data warehousing, okay, this is not BI, and this is not machine learning, neither deep learning. So ये जो analysis है, ये basically it's an exploratory data analysis in which you understand the different columns, their worth, their probability distributions. You conduct some statistical test, you make some box plots, you try to understand the data as much as possible, obviously coupled with your background knowledge. So in all of the above, sorry, इसको इस तरह लिखते हैं, in doing all of the above, I assume that as a BI analyst slash data scientist, I have all the relevant background knowledge about the data, sorry, about the data and the business. Okay, so that's the first thing that you have to do, कि whenever you see some data, पहले आपको उसका background knowledge acquire करना है। और background knowledge acquire करने के लिए I'll give you a few shortcuts. एक तो आपके पास obviously you got Wikipedia and YouTube. सबसे पहले तो ये आपके पास दो चीजें हैं जो कि background knowledge के अच्छे। उसके बाद you can interview the business guys or maybe just chit chat. अगर आपकी कोई सलाम दुआ है, कोई दोस्त है आपका उस डोमेन के इंडस्ट्री में, तो you can always chit chat with someone to understand कि business कैसे चलता है, आपके core problems क्या हैं. Main नहीं बल्कि the crux is to detect and understand the problems that the business is facing. For example, downward trend of sales. For example, inventory overstock. For example, less agricultural yield. For example, delayed deliveries of parcels. All of these are problems, right? For example, employee churn in telecom or in software industry even. ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि हर इंडस्ट्री फेस कर रही होती है, तो यू कैन इजीली डिटेक्ट द प्रॉब्लम्स जो कि किसी इंडस्ट्री में है. तो द मेन पॉइंट इज के बिफोर यू इवन लुक एट द डेटा, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वी हैव टू सॉल्व सम प्रॉब्लम. व्हाट इज द प्रॉब्लम? उसके लिए आपको बैकग्राउंड नॉलेज हासिल करना पड़ेगा. ऐसा बहुत कम होता है कि बिजनेस वाले आपको खुद बता दें, अनलेस द IT guys are really astute people. If the IT guys have the analytics knowledge, then they will be able to identify the problems. But it could be the case कि even in that situation the business is not convinced कि हमें ये problem आ रहा है. तो इसलिए आजकल हम जो data governance की बात करते हैं, वो इसलिए हम करते हैं because data governance is able to bring together the IT guys and the business guys together, and both of them see each other very clearly and understand each other.
So it becomes very easy to conduct an analytics initiative in your organization when you are basically doing data governance. ठीक है? तो अब because data governance is not the focus of this course, लेकिन मैंने आपके knowledge के लिए ये बात बताई है कि जब भी आप लोग उधर जाएंगे industries के अंदर, so if you are facing a governance initiative, then it will be good for you. If you don't have a governance initiative, then you have to do all of this thing to get yourself. कि पहले you get the business knowledge, you understand the customer, you understand the data, you understand the operations, then you look at the data. ठीक है? So ये चीज आपको, ये इन चीजों को सब आप लिख लें, या you can record the lecture or whatever. Lecture तो खैर record हो रहा है, but all of these things are very important. Data governance कैसे होती है? सर एम्प्लॉय चर्न क्या होता था इन टेलीकॉम? When you shift from one company to another company, जैसे जैज से आप यूफोन पे शिफ्ट हो गए, that's a churn for जैज. ठीक है? So data governance is a set of policies, people, and processes that bring together IT and the business guys to create a clear roadmap for implementation of any analytics initiatives in your organization. ठीक है? So IT guys are able to understand the business problems, and the business guys are able to understand the data. सही है? Hence, together they then design policies for all actions that can happen to the data in your organization. For example, collection, ingestion, storage, cleaning, analysis, security of the data, which is a very big topic, cyber security, etc. उसके अंदर ही आ जाता है. Dashboarding or reporting in another way, etc. तो ये that is the crux of data governance. और इसका जो सबसे पहला जो client है वो business intelligence initiative ही है. Many companies are now moving towards data governance. So if you now hear this term, that will not be strange for you. Should not be strange for you. ठीक है? Sir? जी, ये सारी बड़ी सिंपल चीजें, आप इसको बस समझ लें. जी बोलें. सर डेटा गवर्नेंस मतलब कि एक्सप्लिसिटली इंप्लीमेंट होता है, किस तरह होता है, मतलब कि आई डोंट अंडरस्टैंड कि हाउ आर यू गोइंग टू. पहले तो किसी को पता होना चाहिए कि ये काम क्यों करना है. डेटा गवर्नेंस की एक काउंसिल बनती है एट द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. The Data Governance Council consists of all these stakeholders, including the IT guys. C-level executives, सारे business के और IT के उसमें they form part of that. और together they do what I have written. जब उनको एक दूसरे की समझ में आ जाती है, then they design the policies. ये भी मैंने लिख दिया है. Implementation के लिए, for the implementation of data governance initiatives, I have tools. सही है? तो IBM का टूल है डेटा गवर्नेंस का, Azure का एक डेटा गवर्नेंस का टूल है, Collibra is a very famous tool for doing data governance, and I have to hire several extra people for the job who are called, of whom the more famous ones are data stewards. ठीक है? तो steward का मतलब, जैसे in airline we have stewards, right? So what they do is कि they facilitate
ठीक है, they facilitate the passengers. So similarly, data stewards are facilitate the execution of all actions on data. इसमें सिर्फ एनालिटिक्स से ताल्लुक नहीं है, आपका जो जहन है वो बेसिकली डेटा साइंस की तरफ ज़्यादा है सबका, कि डेटा एनालिटिक्स करना है, बीआई करनी है, वेयर हाउसिंग करनी है, मशीन लर्निंग करनी है, एवरीवन इज गोइंग टुवर्ड्स दैट, डीप लर्निंग करनी है। बट डेटा के साथ सिर्फ ये काम नहीं होता, इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है कि डेटा को आपने स्टोर किस तरह करना है, डेटाबेस का डिज़ाइन किस तरीके से करना है। देयर इज़ नो फिक्स्ड पॉलिसी फॉर दैट, देयर इज़ नो पॉलिसी कि हमने डेटाबेस के डिज़ाइन की क्या प्रैक्टिसेस रखनी है। सो इन द कंपनीज इट्स ऑल, शुरू में तो कोई तरतीब होती है, लेकिन आफ्टर मैनी ईयर्स और आफ्टर सेवरल ईयर्स सारा डेटाबेस का शक्ल जो है ना वो ख़राब हो जाती है, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, हेंस वी एंड अप क्रिएटिंग मल्टीपल डेटाबेसेस इन मैनी इंस्टेंसेस, और उसको मैनेज करना और जो है ना मुश्किल हो जाता है। सो ऑलवेज हेल्प इज नीडेड इन दिस रिगार्ड। तो देयरफॉर ये सारी चीज़ों को अलाइन करने के लिए यू हैव दी डेटा गवर्नेंस इनिशिएटिव। इसका एक आसान सा एक कोड आप समझ लें, when your base is not strong, या इसको आप इस तरह कह लें, when your pillars are weak, the building will fall down one day। ठीक है, अगर आपने डेटा गवर्नेंस इनिशिएटिव नहीं लॉन्च किया, डेटाबेस डिजाइन आपका अच्छा नहीं है, प्रैक्टिसेस सही नहीं है, एसक्यूएल क्वेरीज के टेम्पलेट सही नहीं बने हुए, डेटा के पाथ्स सारे डिफाइन नहीं है, कंट्रोल पाथ्स डिफाइन नहीं है, देन व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज दैट आपका जो एनालिटिक्स इनिशिएटिव्स हैं वो दे आर गोइंग टू ग्रो वीक। बुनियादी सही नहीं तो यानी देयर इज नो कांटेक्ट पॉइंट। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि एनालिटिक्स वालों को डेटा चाहिए, हु इज द कांटेक्ट पर्सन, हु टेक्स द रिस्पांसिबिलिटी फॉर दैट। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर समवन इन द आईटी डिपार्टमेंट टू कम एंड से कि हाँ यार मैं तुम लोगों को सर्व करूंगा, अनलेस के ऊपर से कोई ऑर्डर हो, क्योंकि एवरीवन इज बिजी। आईटी के बहुत ढेर सारे काम होते हैं। आईटी का काम ये थोड़ी है कि वो बैठ के सारे दिन एसक्यूएल चलाते रहेंगे। डेटाबेस को लेना, उसको स्टोर करना, उसको मैनेज करना, उसको सिक्योर करना और उसके राइट्स को डिफाइन करना। फिर ऊपर से एक और मुसीबत जो आईटी वालों के सर पे आती है वो ईआरपी है। ऑल्दो ईआरपी इज अ सॉल्यूशन, बट ईआरपी एक मुसीबत भी है, क्योंकि ईआरपी को मैनेज करना पड़ता है, उसके सारे डेटा को देखना पड़ता है, उससे डैशबोर्ड्स निकालने। ईआरपी में, बीआई में डैशबोर्ड्स भी निकलते हैं। ईआरपी की जो एक्टिविटीज हो रही हैं उससे अभी आप डैशबोर्ड में रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, ऑल्दो दैट इज नॉट कोर बीआई। लेकिन ईआरपी जो सैप की ईआरपी है वो बहुत एक्सटेंसिव सॉल्यूशन बन चुका है, जिसके अंदर अब बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं और आ रही होंगी। ठीक है, अब ईआरपी को संभालना ये भी सारा आईटी के उस पे आ जाता है, ये एनालिटिक्स वालों को पे नहीं डाली जाती ये बात। तो आईटी गाइस आर टिपिकली वेरी बिजी। तो जी सर जनरल क्वेश्चन है कि अगर सैप में और इन सब में बिल्ट इन बीआई टूल्स आ गई हैं तो फिर लोग ये पावर बीआई और टैबलू क्यों यूज मैंने आपको बताया है कि वो कोर बीआई नहीं होता। इस तरह तो बहुत सारे टूल्स के साथ डैशबोर्ड अटैच हो चुके हैं कि भाई जो हम आपको करके दिखा रहे हैं उसका थोड़ा बहुत आप चार्ट्स लेके देख लें। इस तरह तो बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं। कोर बीआई जो है ना वो कोर बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होती है। किसी 2-3 डेटा पॉइंट्स के ऊपर कुछ चार्ट बना के दिखाना और डेटा से बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि बीआई का जो चार्ट होता है वो इट हेल्प्स यू एक्वायर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मोर इंफॉर्मेशन एज कंपेयर टू समथिंग कि किसी टूल ने अपना डैशबोर्ड बना के साथ में डाल दिया है। वो बीआई, उसमें बीआई की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एक छोटा सा डैशबोर्ड आ जाएगा कि आप देखना चाहते हैं कि भाई कितनी ईमेल्स गई या ये कितना हुआ, वो कितना हुआ। इट्स नॉट एक्चुअली अ बीआई टूल एज सच। आई थिंक सैप वालों का अपना अलग बीआई सोल्यूशन भी है, सैप बीआई के नाम से, मुझे इतना श्योर नहीं है। इसी तरह एसएएस वालों का भी है, सास का भी है, उनका भी बीआई का अपना सोल्यूशन है, हालांकि वो दूसरे सोल्यूशंस भी ऑफर कर रहे हैं। तो बीआई जो है ना वो एक कोर्स आपको इसलिए अलग से ऑफर किया जाता है क्योंकि बीआई इटसेल्फ इज अ वेरी यूनिक एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। इट्स नॉट समथिंग कि मैं अगर मैं इस पे कितनी ट्रैफिक गुजरी है मैं उसका डैशबोर्ड दिखा दूंगा तो वो बीआई हो जाएगी। वो बीआई नहीं है भाई। इट हैज टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और उसके अंदर और बहुत सारी चीजें आपको सॉल्व करनी होती हैं। सैप में तो देखिए आप डेटा क्लीनिंग क्या करेंगे, सैप में कोई डेटा क्लीनिंग नहीं है, सैप में कोई रैंगलिंग नहीं है, सैप में कोई ईडीए नहीं है। ठीक है, सो बहरहाल ये चीज बस आपके नॉलेज के लिए है। तो आई एम गोइंग टू क्लियर दिस।
और दूसरा एक चीज ये है कि ये किसी का एको आ रहा है, हमराज। अच्छा हाँ, so another point here is that regarding the sampling. So when you have understood the business and the problems of this business, then as an analyst fill in the blanks करें यार. As an analyst, when you have understood the business and the problems of the business, then solve it. नहीं, गलत. Solutions देते सर. Solution देना है. Then the first thing you need is the data. ठीक है, to create a solution. ठीक. So अब data when there is a concept of a sample and there is a concept of a population. ये तो पता है ना आप लोगों को stats से, sample and population. So you will पहला point, how much data you want. जी. अच्छा, इस सैंपल और पॉपुलेशन के ये जो आपस में इनका खेल है, उसमें प्रॉब्लम क्या आती है एनालिस्ट के लिए? सर कभी कभार सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर नहीं हो पाती. हाँ, सैंपल माइट, इसको इस तरह कर लें, सैंपल माइट नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव. देखिए, परफेक्ट तो कोई चीज नहीं है दुनिया में. ठीक है, वो तो आप कुछ समझेगा कि हम परफेक्ट, गूगल वाले समझेंगे हम परफेक्ट सर्च इंजन कंपनी बन गए, जिस दिन उन्हें समझना शुरू कर दिया उनका सवाल शुरू हो जाएगा. अभी तो वो आजी से चल रहे हैं तो उनको तरक्की मिल रही है. परफेक्ट कुछ भी चीज नहीं है, परफेक्ट सिर्फ खुदा की जात होती है. सैंपल माइट नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एक्चुअल पॉपुलेशन. वो भी मैं कह रहा हूँ माइट नॉट बी, हो सकता है हो. हाँ, पॉपुलेशन इसको से करेंगे कि जब से चले आपने डेटा रिकॉर्ड करना शुरू किया. एनालिसिस आपने अभी 6 साल बाद शुरू किया, लेकिन डेटा रिकॉर्ड आप कब से कर रहे हैं? 10 साल पुराने से कर रहे हैं. लेकिन आपको पता है कि 10 साल पहले मैं जाऊंगा तो मैं खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारूंगा. इतना पुराना एनालिसिस, तो आजकल इतनी तेजी से चीजें चेंज हो रही हैं, हर तीसरे दिन कोई नया टूल आ जाता है. तो 10 साल पुराना कस्टमर को एनालाइज करके इट्स माइट नॉट वर्क आउट. ठीक है, तो देयरफॉर मैं सैंपल ही पकड़ूंगा. ठीक है, और उसमें मुझे प्रॉब्लम ये है कि इट माइट नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव. ये रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है, ये मैं आज आप लोगों को क्लियर करूंगा. ये व्हाट यू मीन के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इसका किसका मतलब क्या होता है, ये अभी हम स्लाइड्स में देखेंगे. ठीक है, तो पहला सवाल ये पैदा होता है कि हाउ मच डेटा यू वांट. अब मुझे पता है कि मेरा सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, या हो सकता है कि नहीं है, तो कितना डेटा लेना चाहिए मुझे बीआई के लिए स्लैश वेयर हाउसिंग. सॉरी, फॉर एग्जाम्पल आप टेलीकॉम कंपनी के साथ डील कर रहे हैं, हाउ मच डेटा विल यू वांट उनके लिए, अगर बीआई पे काम करना है आपने. मैंने ये तो नहीं पूछा कि बिग डेटा है या स्मॉल. हाँ, मुझे क्या मालूम कि उनका 1 GB कितना डेटा करेगा. जो डेटा का साइज है वो डायमेंशन नहीं है. थिंक इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस एंड फैक्ट्स. डेटा का साइज है वो डायमेंशन थोड़ी है. साइज तो अगर मैं एग्रीकल्चर में आऊंगा तो 1 GB में हो सकता है 10 साल का डेटा आ जाए, क्योंकि इट्स जस्ट लाइक फर्टिलाइजर्स एंड ट्रैक्टर्स एंड ऑल दोस थिंग्स. अगर आईओटी नहीं है, अगर एग्रीकल्चर में आईओटी है फिर तो ढेर सारा डेटा होगा. अगर आईओटी नहीं है तो फिर तो बड़ा लिमिटेड डेटा हर साल जनरेट होता है. फर्टिलाइजर कौन सा डाला, कितना डाला, क्रॉप्स कब आना शुरू, इट्स अ स्लो प्रोसेस, राइट. तो साइज कैन नॉट बी अ डायमेंशन. कितने साइज हमें डेटा दे दो जी. हाँ, तो कितने महीने का चाहिए? टाइम इज अ गुड आंसर. 5 साल. So 3 years. 3 years to 5 years. असल में इसमें ये होता है कि you have to meet the IT guys and see the data yourself. ठीक है,
and then decide. 3 से 5 साल बिल्कुल काफ़ी है आजकल के जो दौर में, मेरा अपना ज़ाती जो ख्याल है, because it is enough to keep the sample as representative to acquire all the patterns in the data. डेटा के अंदर जितने पैटर्न्स हैं वो आपको पता चल जाएं, वो 3 साल से 5 साल का डेटा काफ़ी है इस ज़माने में, क्योंकि अब आप कोई भी बिजनेस ले लेंगे तो डेटा इज बीइंग जनरेटेड वेरी रैपिडली, और अगर आप 5 साल का डेटा ई कॉमर्स में लेंगे तो ऑब्वियसली दैट माइट गो इनटू लाइक several hundred of gigabytes or even 1 terabyte or something like that. ई कॉमर्स तो रोलिंग बेसिस पे है ना, बड़ी कंपनीज जो हैं, so therefore that's the thing. बिल्कुल बिल्कुल हर कंपनी के लिए ये बात वेरी करेगी, और इट विल मोस्टली डिपेंड ऑन, जी फिल इन द ब्लैंक्स, इट विल मोस्टली डिपेंड ऑन आपको डेटा कितना चाहिए. सॉरी, yes, different sectors. what problem you want to solve, that's the thing. आपको अगर पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या है, आपको मालूम है कि उसको सॉल्व करने के लिए डेटा में क्या क्या होना चाहिए, यू विल अंडरस्टैंड कि ये फीचर्स होने चाहिए, ये होना चाहिए. अच्छा, डेटाबेस में प्रॉब्लम ये होता है जिसको हम RDBMS कहते हैं. RDBMS प्रॉब्लम or you can say an important RDBMS problem is that the data is stored in a RDBMS का प्रॉब्लम क्या एनालिस्ट के लिए कि डेटा इज स्टोर्ड इन अ, सॉरी रिलेशनल तो है, Tables. in a distributed way or normalized fashion. So I have to do joins to collect the data in one place. क्योंकि जो मैं वेयरहाउस बना रहा हूँ, जो स्टार स्कीमा बना रहा हूँ, आई कांट जस्ट कॉपी द स्कीमा एंड पुट दैट एज अ स्टार स्कीमा. स्टार स्कीमा तो एक बिल्कुल अलग डेटाबेस है, और इसका जो फॉर्मेट है वो तो अजीबोगरीब हो रहा होता है. नॉर्मलाइजेशन में यू इजीली आपके पास कस्टमर के 3-4 टेबल्स बन जाएंगे, प्रोडक्ट्स के 3-4 टेबल्स बन जाएंगे, तो आई जस्ट नीड इन्फॉर्मेशन इन वन प्लेस, तो मुझे फिर जॉइंस करने पड़ेंगे. ये एक और प्रॉब्लम आपको आती है इसमें. लेकिन ये सारी, जैसे मैंने कहा कि ये प्रकाश ने कहा कि प्रॉब्लम का अगर आपको पता हो और फिर आप IT वालों के साथ बैठ के डेटा को ब्राउज करेंगे, देन यू विल बी एबल टू डिसाइड. इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये रिकमेंडेशंस हैं, ठीक है. सो दैट्स द थिंग. 3 से 5 साल डेटा गवर्नेंस की बात हो गई, और फिर हाउ यू गेट द डेटा, हाउ मच डेटा यू वांट, ये तो हो गया. व्हाई यू वांट इट, ये भी हो गया कि हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. हाउ डू यू गेट द डेटा, वो हमारे हाथ में नहीं है ना, तो IT वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं सब चीजें, एवरीथिंग इज विद देम. नहीं देखें, एक चीज इसमें आपने, मैं लिख देता हूँ, एक चीज ये है कि एनालिटिक्स एंड IT आर 2 different streams of work. We cannot combine them. IT वालों का हमारे पे एहसान है कि वो हमें डेटा दें, हमारा एक बंदा हो जो कि वो करें, वो ऊपर से ऑर्डर होगा तो करेंगे वो. दैट इज वाई जो CIO है वो गवर्नेंस टीम का हिस्सा होता है. अगर CIO, किसी कंपनी का CIO अगर एनालिटिक्स में मोटिवेटेड नहीं है तो उधर आप काम नहीं कर सकते. एज सिंपल एज दैट, ठीक है. तो वी कैनॉट कंबाइन देम. तो ये दोनों अलग अलग चीजें. तो this means that the analytics guys have to develop their own, हाँ बोले शाबाश, have to develop their own. जब IT से हमें सपोर्ट नहीं मिलेगी डेटाबेस स्टोर करने की, have to develop their own data storage mechanism और methodology, जो भी आप उसको कहना चाहते हैं. मैं उनसे डेटा लेके पहले अपना एक डेटाबेस बना लूंगा, चाहे वो MongoDB हो, चाहे वो Oracle हो, चाहे वो MySQL हो, व्हाटएवर, वो मेरा अपना पर्टिकुलर डेटाबेस हो जाएगा. रिकमेंडेड प्रैक्टिस है
सही है, क्योंकि यू नीड अ फाउंडेशन, यू कांट मेक देम एज द फाउंडेशन, बिकॉज मैं उससे हर वक्त तो उनको एसएमएस नहीं कर सकता ना, यार ये बता दो, यार वो बता दो, यार ये कर दो या वो कर दो। आई कांट डू दैट ऑल द टाइम, या मैं हर वक्त ईमेल कर रहा हूँ। there is no process for that, right? So once you get the data, you take some time to get the data very thoroughly from them. Thoroughly आपने 3 से 5 साल का डेटा ले लिया, अब आपको पता है कि मुझे ये चाहिए। अब सबसे पहला काम ये करें कि आप उसको किसी जगह पे स्टोर करें। यू कैन कीप इट इन एक्सेल, बट द रिकमेंडेड प्रैक्टिस इज कि आप अपना डेटाबेस इंप्लीमेंट कर लें। स्मॉल स्केल ओपन सोर्स, पोस्टग्रेस भी ले सकते हैं, मोंगो भी ले सकते हैं, माईसीक्वल भी ले सकते हैं, तीनों ओपन सोर्स हैं, तीनों जबरदस्त हैं, ठीक है। तो आप इसको इस्तेमाल कर लें। अब वहां से आप डेटा रैंगलिंग और ईडीए वह सब शुरू करें, फिर बीच में आप कोई स्टेजिंग एरिया बनाएं, ठीक है, वहां भी डेटा स्टोर कर लें, या स्टेजिंग एरिया उसी डेटाबेस को बना सकते हैं, ठीक है। और फिर चलें मैं आपको भी बताता हूँ ये कैसे होगा, ठीक है। तो जस्ट रिमेंबर द कॉन्सेप्ट राइट नाउ। और डेटा मिलेगा किस तरह? आईटी वाले डेटा कैसे दें? एक्सट्रैक्ट करेंगे ना सर, डेटा बेसिस जो उनकी बनी हुई है ऑलरेडी उससे। एक्सट्रैक्ट तो करेंगे, तो सवाल तो सुन लें। टिपिकली CSVs में डेटा दे दिया जाता है, या फिर DB डंप्स होते हैं, एंड पासवर्ड्स आर सेंड थ्रू ईमेल्स, व्हाट्सएप एक्सेट्रा, फोन कन्वर्सेशंस, एनक्रिप्ट करके दे दिया, पासवर्ड फोन से भेज दिया या कॉल से, व्हाटएवर, that's how you get the data. This is what happens. और in some cases ये भी हो सकता है कि they might let me change the color here ताकि वो they might give you the access of their server. ये भी मुमकिन हो सकता है कि वो आपको अपने सर्वर का एक्सेस दे दें। For example, after they dump the required data on another database, तो Oracle में एक और DB बना के उसमें आपके लिए सब कुछ डंप कर देंगे और उसका एक्सेस आपको दे देंगे। मेन स्ट्रीम को वो आपको नहीं देंगे। तो यू कैन कनेक्ट टू द सर्वर, और उसमें आपका काम ज़्यादा आसान हो जाएगा कि अपनी मर्जी से करें। बट फॉर दैट द डेटा साइंटिस्ट हैज टू नो SQL in minute detail. इसलिए हमारे कुछ डेटा साइंस की कुछ सर्टिफिकेशंस वगैरह होती हैं जिसमें SQL is now part of that. At least I was with a company some while ago, तो अब तो खैर उनके साथ मैं नहीं हूँ, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। तो बस वैसे ही उनके साथ तो बस ऐसे ही ज़रा गपशप में थोड़ी बहुत बात होती थी। उनके लिए कोर्स बस डिज़ाइन किया था। तो उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, तो उन्होंने ये बात हमें कन्वे की थी कि जो है ये SQL इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेटा साइंटिस्ट टू लर्न। सो इफ़ यू आर डेटा साइंटिस्ट और BI एनालिस्ट फॉर दैट मैटर, बट यू डोंट नो SQL, तो फिर आप ये सारा चीज मैंने लिखा है, फिर आप IT वालों से आप बात करेंगे नहीं जाके। IT वाला तो समझता है कि यार ये डेटा साइंटिस्ट आया है, ठीक है, बहुत बड़ा बंदा आया है जिसके पास कोर्सेरा की सर्टिफिकेशन है, IBA का उसने कोर्स किया हुआ है, IBA से मास्टर्स इन डेटा साइंस किया हुआ है। अच्छा जी, आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, मुझे तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन का भी पता नहीं है क्या किस तरह चलता है, ठीक है। मैंने तो कई अर्सा हो गया, मैं तो वो डेटाबेस के कोर्स में पढ़ा था, ये किसी और को हायर कर लें आप ये करवाने के लिए, आप बंदा दे दें, क्या इज्जत रह जाएगी, क्या इज्जत रह जाएगी। तो देयरफॉर ये ड्रॉबैक कम से कम आप लोगों के IBA ग्रेड्स के साथ ये नहीं होना चाहिए। यू शुड नो SQL वेरी वेरी एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, क्योंकि ये देखें, आपकी पावर कब बनेगी, जब आप ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करेंगे एज अ डेटा साइंटिस्ट। यू आर एबल टू टॉक विद IT because you know IT stuff, right? You are able to talk with the business because you have the business knowledge, and you are able to talk with data scientists क्योंकि आपके पास डेटा साइंस का नॉलेज है। तो then you become that person जो कि डेटा गवर्नेंस लेवल पे ऑपरेट कर सकता है इन द कंपनी। अगर आप वो ये है बंदे कि जो अपना वो आ रहे हैं सुबह के टाइम, वहीं पे आके अपना वो डोनट्स और कॉफी का नाश्ता कर रहे हैं, कोने में बैठे हैं, सारा दिन कोने में बैठे रहे, बड़े बड़े काम करवा लो, ठीक है, बड़े बड़े मशीन लर्निंग मॉडल्स आप ट्रेन करवा लें, ये अच्छी बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारा रोल है ना, वो सिर्फ ये नहीं है। एक कंपनी में एक डेटा साइंटिस्ट भी काफी होगा, उसको ये सब चीजें आती हैं, इतनी पावरफुल चीज है ये, लेकिन उस तरह की ट्रेनिंग नहीं हो रही ना।
जो सर्टिफिकेशंस आती हैं वो ये सारी बातें आपको थोड़ी बताएंगे, तो मेरे सारे एक्सपीरियंस की बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपको करना है, ये मसले होते हैं, ये होता है, ये कोई आपको थोड़ी बताएगा कोई और। आप लेके देख लें सर्टिफिकेशंस, दे डोंट टेल यू एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए, दैट्स द मेन प्रॉब्लम, ठीक है। सो बहरहाल यू नो शुड नो एसक्यूएल, वरना तो आप जो है वो आपको कोई देखेगा नहीं फिर, नो वन विल लुक टुवर्ड्स यू फॉर यू नो कि यार इस बंदे से हमारा मसला हल हो सकता है, इस बंदे को कहेंगे तो ये कोशिश करके कुछ ना कुछ कर देगा या कर देगी, तो यू विल नॉट बी दैट पर्सन, यू विल बी दैट पर्सन कि यार इनको बस वो क्लाइंट से मीटिंग करवा दो तो ये हमें ये डॉक्यूमेंट बना के दे देंगे बस। और आईबीए का लेबल है तो आईबीए के लेबल विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आईबीए का लेबल इसलिए थोड़ी है कि आप जाके बिजनेस एनालिस्ट बन जाएं और क्लाइंट से गपशप लगा के डॉक्यूमेंटेशन करते रहें, कि आपसे एक्सपेक्टेशन लोगों की ये नहीं है। सो देयरफॉर यू हैव टू लर्न दीज थिंग्स, ठीक है। बहरहाल आई होप कि दिस इज क्लियर। अब मैं आपको वो बता दूं जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि व्हाट हैपेंस हियर इज दैट यू हैव दिस ऑब्वियसली यहाँ पर आपके पास ऑरेकल है। मैं ऑरेकल इसलिए लिखता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऑरेकल बहुत सारा चलता है, तो लेट्स से कि दिस इज द ऑरेकल आरडीबीएमएस, और इसके अंदर आपके पास वो सारे टेबल्स हैं एंड यू नो इट्स ऑल आगे पीछे, ठीक है। सो ये मैं कह सकता हूँ कि tables are spaghetti tables, ठीक है। everything is normalized, too much spread out, और डिजाइन कोई नहीं रहा डेटाबेस का। तो the first thing you do के when you get the data, सर स्पेगेटी टेबल से क्या मुराद है? डिजाइन खत्म हो जाता है, there is no fixed design, ERD का डिजाइन सारा खत्म हो जाता है, बस ad hoc बेसिस के ऊपर डेटाबेस का डिजाइन चेंज हो रहा होता है। So when you get the data then पहला काम आप ये करेंगे कि ये आपका अपना डेटाबेस होगा, इसको आप कह लें कि ADB कह लें, एनालिटिकल डेटाबेस। सो मैंने आपको बताया है कि फॉर दिस यू कैन यूज मोंगो, माईस्क्ल और पोस्टग्रेस। ये तीनों बड़े जायंट्स हैं और ज़बरदस्त डेटाबेसेस हैं, ठीक है। सिक्योर भी हैं और बहुत कुछ इसके अंदर है। ऑब्वियसली ओरेकल लेवल का तो वो चीज़ नहीं है, ठीक है। अंडू भी नहीं करना आता मुझे यार। और मोंगो, माईस्क्ल और पोस्टग्रेस, ठीक है जी, सही है। तो ये अब यहाँ से फ्रॉम हेयर जो आपका जो एनालिटिकल जो सारा सिनेरियो है स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। यू कैन कॉल दिस एज दी, अब इसको कह लें कि ये मेरा वो है एनालिटिकल रील कह रहे हैं या लेक कह लें या वट जो भी आप इसको कहना चाहते हैं, कि मेरी अपनी दुनिया है बेसिकली ना, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ मैं लिखता हूँ कि डेवलप पाइपलाइन, कि आपकी इससे एक पाइपलाइन होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे आपने अपडेट भी करना है ना, तो एक रेगुलर पाइपलाइन आपके पास होनी चाहिए जो डेटाबेस वहां से निकल के ऑटोनोमसली आपके डेटाबेस में मैप हो रहा हो स्कीमा के ऊपर। ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम। आप अपने डीबी का सबसे पहले स्कीमा बनाएंगे कि मैंने जो डेटा लिया है आईटी वालों से वो मैं किस फॉर्मेट के ऊपर अपने डेटाबेस में स्टोर करूंगा। यू विल वांट दैट, राइट। तो वो स्कीमा डिजाइन करना पड़ेगा, लेकिन बाद में आप इसको ऑटोमेट कर सकते हैं। आईटी वालों से कह सकते हैं कि भाई ये रेगुलरली एक हफ्ते के बाद यहाँ से स्क्रिप्ट चलेगी, यहाँ से डेटा आएगा, वो यहाँ आ जाएगा। स्क्रिप्ट आप आईटी वालों के कंट्रोल में डाल दें, बिकॉज स्क्रिप्ट में पासवर्ड डालना होगा ना, जो यूजर नेम पासवर्ड उसका ऑरेकल का। तो आईटी वालों से कि भाई ये स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट आप हर 2 हफ्ते बाद चला दिया करें, तो वहां से ये डेटा निकल के इधर आके मेरे अपडेट हो जाएगा। या मैं थोड़ी इसको हर 2 हफ्ते बाद मैं खुद थोड़ी करूंगा इसको, आई डोंट हैव द टाइम फॉर दैट, राइट। अब यहाँ से आपका काम नहीं, कुछ भी क्लीनिंग नहीं। क्लीनिंग कहाँ से, वो तो आपको एक्सेल फाइल दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, तो वो तो खैर अगर वो कहेंगे कि नहीं भाई ये हम तो आपको एक्सेल ही ईमेल करेंगे बस, और पासवर्ड आपका व्हाट्सएप पे आ जाएगा, फिर आप मजबूर हैं, फिर तो पाइपलाइन नहीं बन सकती। लेकिन कोशिश करें कि बन जाए ताकि आपकी टेंशन खत्म हो जाए, क्योंकि अगर डेटा वेयर हाउस को आप अपडेट नहीं करेंगे तो आगे एनालिसिस क्या अपडेट होंगे। हाँ ये है ना, गवर्नेंस जब आ जाती है ना, फिर ये इस तरह की झंझटें नहीं होती बीच में। जब ऊपर से गवर्नेंस होती है ना, फिर पाइपलाइन आपकी आराम से बन जाएगी।
तो यू कैन टॉक, इम्प्रोवाइज कर लें थोड़ा सा, कि कोशिश करें कि हो जाए। आईटी वाले टिपिकली कर देते हैं, उनके लिए इतना बड़ा इशू नहीं होता। आईटी गाइज आर रियली सपोर्टिव इन मैनी केसेस। अच्छा बहरहाल यहाँ पर आ गया। अब अगला स्टेप यहाँ पे आपका है ईडीए। ईडीए के लिए जो बेस्ट आपके पास टूल्स हैं, वो अगर कोई बहुत ही हाई फाई किस्म का सेटअप है तो दे कैन यूज सम ऑनलाइन टूल फॉर डूइंग ईडीए। ऑनलाइन टूल में हाँ, इसमें असल में देयर इज नो सच ऑनलाइन टूल जो कि इतना कॉम्प्रिहेंसिव हो, जो कि जिस तरह से मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। बेसिक क्लीनिंग तो हो जाएगी, मिसिंग वैल्यूज रिप्लेस करना, लेकिन आमतौर पे आई थिंक कि दिस इज लेफ्ट टू दी डेटा एनालिसिस टीम। ऑनलाइन टूल्स में मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि देयर आर अ फ्यू टूल्स, लेकिन वो इतने कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है वो, और इतने मशहूर भी नहीं है कि आप ऑनलाइन जाके ईटीएल कर लें। हैं टूल्स जिन पे आप ईटीएल कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये अमेज़न और एज़्योर वगैरह की जो ऑफरिंग्स हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि उसमें ईटीएल के बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल होंगे। लेकिन एवरीवन डज नॉट पुट द डेटा ऑन द क्लाउड, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात फिर ये है कि इट इज़ नॉट इन माई कंट्रोल, द ऑनलाइन टूल इज़ नॉट इन माई कंट्रोल, सो देयरफॉर आई डोंट वांट टू गो फॉर द ऑनलाइन टूल, बिकॉज आई वांट टू कीप द डेटा सिक्योर। भाई अगर मैं किसी कंपनी के क्लाउड पे जाके डेटा क्लीन करना शुरू कर दूं, मुझे क्या पता है कि वो मेरे डेटा के साथ क्या कर रहे हैं। आई कैन नॉट पुट इट ऑन द क्लाउड, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि यहाँ मैं लिख देता हूँ कि क्या लिख देता हूँ कि यूज ऑफलाइन। तो ऑफलाइन के लिए तो अब आपके पास बहुत सारी लैंग्वेजेस है, पाइथन है, आर है। नहीं, ये कहाँ से बात आई है कि क्लाउड हर कोई यूज कर रहा है? कहाँ से बात आई है? कहाँ, किसने कहा है? कहाँ लिखा है? कोई है, कोई उसमें कोई गार्टनर की कोई सर्वे आया है कि उन्होंने इस तरह लिखा हो कि नाउ एवरी, अब उन्होंने लिखा है कि नाउ अ ट्रेंड इज स्टार्टिंग, एवरीवन इज स्टार्टिंग यूजिंग क्लाउड? ऐसा नहीं है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज इन द वर्ल्ड। हमारे यहाँ पाकिस्तान में इतना ज़्यादा अभी वो प्रिवेलेंट, पाकिस्तानी जो कंपनी है, जैसे हमारे जो लोकल ब्रांड्स हैं, उनके अंदर अभी इतना ट्रेंड नहीं है कि वो क्लाउड पे जाएं। मैक्सिमम वो क्लाउड पे जाएंगे तो वो शायद बीआई के लिए चले जाएं, लेकिन डेटा मैनेजमेंट और इन सब चीज़ों के लिए क्लाउड पे जाना वो इतना ट्रेंड, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी का थोड़ा सा एक लोगों के जहन में बात है कि डेटा शुड बी सिक्योर। तो सबसे पहले जो डोमेन जाता है मेरा ख्याल में बैंकिंग जाती है। अब हमारे यहाँ बैंकिंग कितनी क्लाउड पे है मुझे तो इसका इतना अंदाजा नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो होल हार्टेडली उसको एक्सेप्ट किया उन्होंने। देखिए पॉलिसी तो है, लेकिन स्टिल यू नेवर नो व्हाट्स हैपनिंग, राइट? दे आर नॉट प्रॉफिट्स कि वो गुनाह नहीं करेंगे। अब फेसबुक वगैरह देखें, सब कुछ है, ओपनली बात आ गई है कि डेटा आपका इस्तेमाल हो रहा है आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए। हालांकि मेरा कंसेंट नहीं है, आई डोंट वांट टू सी एडवर्टाइजमेंट्स थ्रू फेसबुक, लेकिन वो कर रहे हैं, दे हैव टू मेक देयर ओन मनी फ्रॉम दैट। अगर आप फेसबुक के इतने गुलाम बन गए हैं तो देन नाउ यू हैव टू फॉलो देम। तो ये चक्कर है। तो इसलिए मेरी राय तो यही होगी कि भाई ओल्ड इज गोल्ड। नई टेक्नोलॉजीज पे आप जितना जाएंगे ना, उनमें बड़ा रिस्क होता है। जब तक एक टेक्नोलॉजी प्रिवेलेंट नहीं हो जाती ना, तो उस वक्त तक, अभी जैसे क्लाउड को तकरीबन 13-14 साल होने को हैं, सो स्लोली बिकमिंग, या उसमें कोई ब्रीचेस के इतने कोई यूज केसेस आए भी नहीं है, तो आप कर सकते हैं अगर आपकी कंपनी का वो, लेकिन आपका कंट्रोल नहीं है। क्लाउड इज नॉट योर कंट्रोल, दैट्स द मेन इशू। और आपके एनालिसिस वगैरह सारे उनके डैशबोर्ड पे जा रहे हैं, भाई कोई भी अगर वो भी देख रहे हैं तो दैट्स नॉट गुड। नहीं नहीं, तो अपना जब मैं 2-3 लाख रुपए में एक अच्छी सर्वर मशीन ले सकता हूँ, अपना क्लाउड बनाना चाहते हैं, प्राइवेट क्लाउड बना लेंगे। प्राइवेट क्लाउड अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपके पास एक्सपर्टीज है तो बना लें बिल्कुल। डेटा सेंटर्स से हाँ वो ले लेना, स्पेस ले लें। डेटा सेंटर्स वाले ये सर्विसेज देते हैं ना, पाकिस्तान में वैसे डेटा सेंटर्स खुल रहे हैं, who give you the place, और जिस तरह अमेजोन करता है इस तरह वो आपको करके दे देंगे। पाकिस्तान में ऐसे क्लाउड आ गए हैं। आई थिंक कौन सी यार वो बड़ी मशहूर कंपनी है, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा, रैपिड कंप्यूट वगैरह। हाँ ये एनईटी में हुआ हुआ, लेकिन एनईटी वाले उस तरह से कमर्शियल इतना नहीं कर रहे। कमर्शियल कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ कि बड़ी बड़ी कंपनीज अब इसको सोच रही हैं कि हम
अपने डेटा सेंटर्स खोलें जिस पे हम अपनी पाकिस्तानी कंपनीज को रेंट पे दे सकें, बिकॉज डेटा इज गोइंग टू रिमेन विद इन पाकिस्तान। और इसी वजह से जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने जो दुबई में अपना खोला है सारा, अभी उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वालों ने अपना जो स्टोरेज है क्लाउड का, जहाँ पे एक्चुअली क्लाउड के पीसीस पड़े होते हैं, उन्होंने वो अपना पूरा एक स्टोरेज सेंटर वहाँ पे यूएई में खोला है, क्योंकि वहाँ पे बैंक्स को यही गिला था कि वी आर नॉट गोइंग टू स्टोर अवर डेटा इन जापान और ओरिगॉन और वट एवर। तो क्लाउड में तो ज़्यादातर उनका फार ईस्ट में होता है या अमेरिका में होता है जो उनके डेटा सेंटर्स हैं एक्चुअल। तो उन्होंने अभी अपना एक पूरा डेटा सेंटर या स्टोरेज सेंटर आप कह लें क्लाउड का, वो उन्होंने अभी एमिरेट्स के अंदर खोला है, ताकि हम इस चीज़ को कैटर कर लें कि आपका डेटा मुल्क से बाहर नहीं जाएगा। सर इशू क्या है अगर मुल्क से बाहर चला जाए डेटा? इशू सिक्योरिटी का इशू। देखिए बात ये होती है कि अमेजोन को तो हम कुछ नहीं कह रहे, लेकिन देर आर अदर पीपल। अब फॉर एग्जांपल अभी हमारे रिसेंटली मुझे पता चला कि जो फेसबुक पे जो ये लोग अपनी करते हैं बिजनेस जो चलाते हैं ऑनलाइन बिजनेस, देर आर मेनी गर्ल्स हु आर डूइंग दैट। तो बहुत सारे वहाँ पे हमारे जो लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं वो बेसिकली उनका फेसबुक अकाउंट है कोई, और उनकी जो उन्होंने अपनी जो कार्ड की इंफॉर्मेशन डाली होती है, समवन ट्राइज टू एक्सेस दैट इंफॉर्मेशन, मेक पेमेंट्स फॉर हिज ओन बिजनेस, और आप फेसबुक वालों को ईमेल करें सब कुछ करें तो वो इतना ज़्यादा उनके पास जितना जल्दी जवाब नहीं आता, इतने एक्शंस नहीं ले जाते। आपने अपने अकाउंट अपने कार्ड इन्फॉर्मेशन डाली, अगर आपके कार्ड में पैसे हैं, आपके अकाउंट में पैसे हैं और उसने आपका फेसबुक पेज हैक कर लिया, तो वो सारे पैसे आपके इस्तेमाल कर लेगा और आपको बस चुपके से मैसेज आ जाएगा कि इतने की ट्रांजैक्शन हो गई है। ये हो रहा है अब तो मैं तो आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करें भी तो 2 अकाउंट्स रखें। एक अकाउंट में आपका मेन पैसा हो जो ज़्यादा पैसे हैं, और एक छोटा सा अकाउंट रखें पेमेंट्स करने की जिसमें 10-20 हज़ार रुपये हो, बस इससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि इन केस अगर हैक हो गया तो आपको बहुत बड़ी फक्की पड़ जाएगी। अगर आपके अकाउंट में 5-6 लाख रुपया पड़ा हुआ है, 8-10 लाख पड़ा हुआ है, हैक हो गया तो सारा साफ हो जाएगा। ये अभी रिसेंटली ये केस हुआ है हमारी फैमिली में, तो वो तूफान खड़ा हो गया था घर में, उनके घर में तूफान खड़ा हो गया था कि भाई ये क्या हुआ, इस तरह हुआ। जीमेल अकाउंट्स हैक हो रहे हैं, समवन ट्राइज टू एक्सेस द जीमेल, तो जीमेल का पासवर्ड, ये सब चीजें। तो ये तो मैं बात करूं कि फेसबुक के ऊपर ये चीज पॉसिबल है और हो रही है। आप फॉरम्स पढ़ लें जाके, व्हाई नॉट क्लाउड। अगर क्लाउड पे किसी ने भी कुछ एक दफा निकाल लिया कोई रास्ता, तो फिर तो एक दफा ये होगा कि फिर बहुत बड़ा ब्रीच आएगा, बहुत सारे लोगों का नुकसान होगा, फिर वो कुछ करेंगे। तो टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज फॉलेबल। बेहतर ये होता है कि आप इन हाउस ही सब कुछ करें बिफोर स्टार्टिंग टू ट्रस्ट द क्लाउड दैट मच। हाँ ये है कि अगर आपका इस केस में आप कर सकते हैं, अगर आपकी 2-3 कंपनीज हैं, बड़ा एक प्रोजेक्ट है, एंड देयर इज समवन फ्रॉम द यूएसए फॉर एग्जांपल, जो कि आपको पता है कि आपकी सपोर्ट के लिए कोई वहाँ पर है, तो देन कोई अमेरिकन हो, सब कुछ हो, तो वो थोड़ा सा एक डिफरेंट बेटर हो जाता है कि 2-3 कंपनीज मिक्स करके काम कर रही हैं, तो उसके लिए क्लाउड के बगैर आपका काम हो नहीं सकता। लेकिन अगर आप इन हाउस ही सारा काम कर रहे हैं तो फिर तो भाई आप अपना इन हाउस ही करें। और दूसरी बात से देखिए, दूसरा मसला ये है कि किसी का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर जो है ना, दैट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम इन द वे यू वांट। जैसे ईडीए में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग करता है क्लाउड के ऊपर? टी टेस्ट और अनोवा टेस्ट कौन करता है? काय स्क्वायर टेस्ट आपने कंडक्ट करना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेस्टिंग करनी है, वो तो मैंने तो नहीं देखा कोई होगा सॉफ्टवेयर, मुझे तो नहीं, इतना फेमस तो नहीं है। तो पाइथन के अंदर तो मेरे पास पूरी दुनिया, मुझे उन्होंने पूरे हदिया एक ट्रे में डाल के दे दी कि जो मर्जी लेना है ले लो, सब कुछ फ्री है, आप अपने तौर पर बना लें। तो ये, और पावर भी बंदे के पास उस वक्त आती है जब वो काम खुद करता है। तो टूल को डाउनलोड करके टूल सीख लेना ये कौन सी बड़ी बात है भाई? जैसे बीआई का टूल आप डाउनलोड कर लेंगे, सीख लेंगे, बीआई में जब तक आप प्रोसेस फॉलो करेंगे फिर मजा आएगा। वैसे तो मैं यूट्यूब पे, आप किसी को भी बिठा दें, क्लास 5 के बच्चे को बिठा दें आप कि भाई ये पावर बीआई है, ये यूट्यूब है, वो 3 दिन में आपको डैशबोर्ड बना के दे रहा होगा। उसके लिए आईबी आने की क्या जरूरत है? और लेकिन उसको वो प्रोसेस नहीं पता होगा कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, ये रिबन चार्ट का क्या मकसद हो सकता है, इसका इम्पैक्ट क्या आता है बिजनेस के ऊपर, बिजनेस वालों को चीज कैसे दिखानी है, डैशबोर्ड डिजाइन कैसे किया जाता है, ये सब चीजें उसको नहीं पता होंगी, लेकिन स्किल उसके पास होगी। तो ये इट्स ऑल अबाउट स्किल्स। अगर आपको स्किल नहीं आती तो किस तरह, तो मेरी राय तो यही है कि भाई आर इज नॉट अ लैंग्वेज जो कि हम एंटरप्राइज डेवलपमेंट में इस्तेमाल करते हैं। एंटरप्राइज डेवलपमेंट के लिए आपको पाइथन ही आजकल लोग ज्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं।
देयर इज अदर लैंग्वेज व्हिच इज कमिंग अप, जो मैंने सुना है काफी मशहूर हो रही है, जूलिया। ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसको नहीं ट्राई किया, ना मैंने इसको पढ़ाया है कभी, ना मैंने खुद इस पे कभी हैंड्स ऑन किया है, लेकिन मैंने सुना है कि ये पाइथन के लिए कंपटीशन में बहुत तेजी से आगे आ रही है। यू कैन सी कि ये देखिए, हम एंटरप्राइज की बात करें ना, ये सारा काम जो यहाँ पर हो रहा है, ऑल ऑफ दिस इज एंटरप्राइज। पूरी पाइपलाइंस बनी हुई हैं, सब कुछ बना हुआ है। आईटी वाले पहले से हो सकता है कोई डैशबोर्ड इस्तेमाल कर रहे हो SQL सर्वर के ऊपर, ठीक है, थोड़ी बहुत वेयर हाउसिंग पहले से वो कर रहे हो, मुमकिन है कर रहे हो, या फिर SQL की क्वेरीज भी किसी डैशबोर्ड पे दिखा रहे हो, ये भी मुमकिन है। आईटी वालों को आमतौर पे पता होता है इस डैशबोर्डिंग वगैरह का, तो हो सकता है पहले से काम करे। तो अब आपको उनके पूरे प्रोसेस के अंदर अपनी एक ट्रेन की पटरी बिछानी है। तो एंटरप्राइज डेवलपमेंट के लिए तो फिर आपको यू हैव टू डू दैट ऑन पाइथन, कि आप उनके साथ फिर इंटीग्रेट हो जाएं। कोई दूसरा सोल्यूशन क्लाउड पे इस्तेमाल करेंगे तो आप उनके साथ कैसे इंटीग्रेट करेंगे? सही है। तो बहरहाल ये चीज़ है। और देन यू डू दिस EDA, जिसमें मैंने आपको बताया कि 2 चीज़ें होती हैं। उसके बाद आम तौर पे आजकल, अच्छा हाँ, ये इस चीज़ को आप क्या कहते हैं, कोई बता सकता है मुझे? इस एनालिटिकल DB का आजकल एक नाम भी है, बहुत आसान है। प्रकाश है? ओलैब? ओलैब कहाँ से आ गया? अभी तो मैंने यहाँ से डेटा उठा के यहाँ डाला है। दिस इज एन एनालिटिकल, मतलब उसको मैंने नाम दिया एनालिटिकल डेटाबेस, एनालिसिस किया नहीं है मैंने। डेटाबेस फॉर एनालिसिस की वजह से मैंने उसको एनालिटिकल कहा है, उसमें एनालिसिस मैंने किया नहीं है। इसको क्या कहते हैं आजकल? ये रॉ डेटा को उठा के एक जगह से, पुराने स्ट्रीम से उठा के एक जगह पे डाल देना। डेटा मार्ट, डेटा ये? मार्ट, डेटा डेटा मार्ट मार्ट सर। तो वेयर हाउस होता है ना, वेयर हाउस तो मैंने बनाया नहीं अभी। डेटा ओ जी, डेटा लेक इज द आंसर, दैट्स द करेक्ट आंसर। Data lake is what you call it. Data lake is a repository of data in which you put the raw data which is required for analysis. It is absolutely raw data. It is not clean. It is not processed at all. It is just there. Yes, there can be divisions in the data for the lake, but it is not processed in any way. तो इसको हम आजकल डेटा लेक कहते हैं, और डेटा लेक के सॉल्यूशंस भी आपके पास अवेलेबल हैं। आप डेटा लेक ओपन सोर्स भी बना सकते हैं और क्लाउड पर भी बना सकते हैं, ठीक है। ओपन सोर्स के अंदर जैसे आई थिंक मुझे इनको स्क्रीन शेयर करके दिखानी पड़ेगी। अपाची हुडी, अब इसके लिए आपको जाहिर सी बात है प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। तो ये आमतौर पे डेटा लेक को उसको हडूप पे ही डाल देते हैं, क्योंकि हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की, तो इफ़ यू गॉट बिग बिग कंपनीज देन आई एम रिक्वायर्ड टू यूज़ हडूप। तो अगर आपने हडूप पे डेटा डाल दिया है तो उसके ऊपर आप पूरी डेटा लेक बना के उसके ऊपर आप एनालिसिस कर सकते हैं। आप एनालिसिस जो है वो टिपिकल स्मॉल डेटा का भी कर सकते हैं, और ये बिग डेटा के टूल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे स्पार्क और हाइव, जो कि हमारे साथ जो वेयर हाउसिंग में जिन्होंने लिया उन्होंने किया हुआ था। और आजकल ये कोई नई चीज़ आई है डेल्टा लेक, ये मैंने अभी कुछ रिसेंटली देखी है। सो ये भी एक तरह से ओपन सोर्स स्टोरेज लेयर है, जो कि आपको ये चीज़ फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि आप एक लेक इम्प्लीमेंट करें और उसके ऊपर आप ये देखें, ये ओलैप क्यूब की तरह एग्रीगेटेड स्टोर्स कंप्यूट कर सकें बिग डेटा के ऊपर। ये बिग डेटा के ऊपर सारा काम हो रहा है भाई, टेराबाइट्स तो नहीं है, गीगाबाइट्स तक तो ये मैनेज कर लेगा। अगर आपने डेटा हडूप पे स्टोर किया है, हडूप पे तो कुछ हंड्रेड्स ऑफ गीगाबाइट्स तो आराम से यू कैन से दैट्स द नॉर्मल सिनेरियो। और उसके ऊपर फिर आप ये अपने टेबल्स बना के आप ये आराम से एग्रीगेट क्वेरीज वगैरह निकाल सकते हैं। अब देखिए कितनी डाइवर्सिटी आ रही है। नाउ दिस इज डेटा वेयर हाउसिंग ओवर बिग डेटा। सिंपली ये कि आपने नीचे से प्लेटफॉर्म को, लेक का प्लेटफॉर्म हडूप डाल दिया, अब उसके ऊपर आप बिग डेटा के सॉल्यूशन इस्तेमाल कर लें, या पाइथन, प्योर पाइथन के ऊपर भी आप बिग डेटा के ऊपर वेयर हाउसिंग कर सकते हैं। पिवट टेबल्स वगैरह बना के प्योर पाइथन पे भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी मशीन कितनी स्ट्रांग है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? आज बच्चे कम आए हैं। So now I put this as this can be a staging area, ठीक है।
स्टेजिंग एरिया का मतलब क्या होता है कि टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए मैंने ट्रांजिट, जैसे आप कहीं जाते हैं एमिरेट से तो पहले दुबई में ट्रांजिट होता है, तो कुछ देर के लिए आप ट्रांजिट कर रहे हैं, और इसकी 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 ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि यू गॉट टू गो बैक एंड फोर्थ एंड चेक मैनी थिंग्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो उसमें राउंड एंड राउंड जाने में जो है ना वो स्टेजिंग एरिया होना ज़रूरी है। उसके बाद फिर आप क्या कहते हैं, यू कैन इम्प्लीमेंट दी, बोथ ऑफ देम कैन बी द सेम थिंग। आप चाहें तो कर लें, नहीं अगर नहीं ज़रूरत तो ना करें। फिर आप अपना वेयर हाउस बनाएं। तो आमतौर पे डेटा वेयर हाउस बनाया जाता है बिफोर यू गो टुवर्ड्स द बीआई टूल्स। अच्छा, ये जो डेटा वेयर हाउस है ना, ये मैं अब आपको एक इनफैक्ट स्टेजिंग एरिया इज एन एरिया जहाँ पर मुझे थोड़ा सा रफ काम करने हैं बिफोर आई एक्चुअली बिल्ड द डेटा मार्ट और द डेटा वेयर हाउस। रफ काम से मतलब ये है कि जैसे लेट मी गिव एन एग्जांपल, जैसे कोई अगर आप कोई कपड़े सी रहे हैं, इफ अ टेलर इज सूइंग क्लोथ्स, तो उसको आप एक पूरा एक वो दे देते हैं कि भाई ये आप कपड़ा लें और इसमें मुझे ये चीज़ बना के दे दें। तो जब वो कपड़ा बनाना खत्म करेगा तो आप देखेंगे कि कोई पीस यहाँ पर पड़ा हुआ है, कोई कटा हुआ पीस यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, कोई गंद बचा हुआ है, लेकिन वो कपड़ा आपके सामने है। तो इसी तरह डेटा का बहुत सारा ऐसे काम करना पड़ता है जो कि बैक एंड फोर्थ जाना पड़ता है, कुछ चीज़ें डिलीट करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं। उस किस्म का काम करने के लिए फिर आपको स्टेजिंग एरिया चाहिए। तो दिस कुड बी सिंपली अ पाइथन नोटबुक, or it could, or you can store that on some server, or it could be staging area could be a database in your analytical database, ये भी हो सकता है। स्टेजिंग एरिया का इम्प्लीमेंटेशन किस तरह करनी है वो आपके अपने ऊपर है कि आप उसके रिजल्ट्स कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं, एक्सेल में स्टोर कर सकते हैं। सर तो टेक्निकली स्टेजिंग एरिया रैंगल करने, सेपरेट मशीन, हाँ स्टेजिंग एरिया रैंगल करने के लिए, डेटा रैंगल करने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये रैंगल करने के लिए भी है। ये ईडीए का काम सारा का सारा आपका इसी लेवल पर होगा स्टेजिंग एरिया में। तो दिस कुड बी अ सेपरेट मशीन और इट कुड बी द सेम मशीन जिस पे आपकी ये लेक चल रही है। ये आपके अपने ऊपर है कि आपके पास कितनी फैसिलिटीज हैं। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली इससे कनेक्ट करें और इसी मशीन पे नोटबुक चलाना शुरू कर दें, बट दैट इज नॉट रिकमेंडेड ऑब्वियसली, क्योंकि ये तो आपका डेटा स्टोर है। बहरहाल ये आपने स्टेजिंग की, फिर आपने अपना डेटा वेयर हाउस बिल्ड किया। अच्छा, डेटा वेयर हाउस बिल्ड करने का अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट बनाया वो है आपका स्टार स्कीमा का, कि हमने ये देखा है कि जी स्टार स्कीमा बनाना है। मुख्तलिफ सोल्यूशंस जो डेटा वेयर हाउस बना रहे हैं वो नॉट नेसेसरीली दे बिल्ड अ स्टार स्कीमा। जैसे सैप वाले भी वेयर हाउसिंग का एक सोल्यूशन ऑफर कर रहे हैं। वेयर हाउस से डेटा लेके फिर आप बीआई में जाके उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो हो सकता है स्टार स्कीमा हो सकता है कि सिंपली डेटा आपने किसी फॉर्मेट में स्टोर कर दिया है। मुझे कंप्लीटली इल्म नहीं है कि आया कि हमें यहाँ ज़बरदस्ती स्टार स्कीमा ही बनाना चाहिए या नहीं। लेकिन ये बात है कि आपके पास यहाँ पर ये भी काम करने से पहले आपको पता है कि मेरे केपीआईज कौन से हैं, मेरे फैक्ट्स कौन से हैं, मेरे डायमेंशंस कौन से हैं, और वो सारा डेटा आपने 3 से 5 साल का लेके उसको क्लीन करके आपने स्टेजिंग एरिया में रखा हुआ है। अब आप उसको एज अ स्टार स्कीमा मॉडल करें तो आप कर लें, लेकिन उसमें फिर आपको एसक्यूएल की वो करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर जॉइंस करा के आपको एग्रीगेट ओलैप क्यूब बनाना पड़ेगा। ठीक है, और बीआई के अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि भाई आपको ओलैप क्यूब बनाने की, पूरा ओलैप क्यूब बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो हर चीज हर वक्त थोड़ी देखनी है मुझे। जो मुझे ओलैप क्यूब का हिस्सा चाहिए वो मैं टूल के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू बना लूंगा। तो therefore I do not force this कि you always implement the star schema in the warehouse, and maybe this thing is true for the bigger companies as well कि उन्होंने कहा तो उसको नाम warehouse का दिया है, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि यार स्टार स्कीमा ही जबरदस्ती हम बना के देंगे तुम्हें। स्टार स्कीमा में तो फिर ओलैप क्यूब की तरफ मेरी बात चली जाएगी ना। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि यार मॉडलिंग के लिए मेरे लिए बड़ा अच्छा है स्टार स्कीमा, तो ठीक है आप स्टार स्कीमा बना लें। वही स्कीमा उठा के आप बीआई टूल में मॉडल कर लें और उसके थ्रू वो आप एनालिसिस कर लें। ओलैप क्यूब ना बनाएं। अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि अब तो लैपटॉप्स में टेराबाइट तक बात पहुंच गई ना। अब तो वो 16 GB रैम, 32 GB रैम तो अब लैपटॉप्स के अंदर आना शुरू हो गई ना। अब वो लैब क्यूब बनाने की अब वो टेंशन नहीं है जो 10 साल पहले थी। इट इज़ नॉट दैट मच। हाँ, अगर हम बिग डेटा की बात कर रहे हैं तो फिर हमने बता दिया कि वो तो आपको हडूप पे जाना पड़ेगा। गीगाबाइट्स की अगर बात हो रही है तो वो गीगाबाइट मुझे नहीं पता कि पावर बीआई क्लाउड पे भी संभाल पाएगा कि नहीं पाएगा। अगर कर सकता है तो 100 बिस्मिल्लाह। ठीक है, हो सकता है जोर वाले आपको कहें कि जी आप अपना डेटा हमारे इस डेटा लेक पे डाल दें, फिर पावर बीआई आराम से चलाते फिरें, और आपकी कंपनी फैसला कर ले तो ठीक है करें। हाँ,
फिर वो सिक्योरिटी का इशू या जो भी है, इफ इट इज अ डिसीजन जो कि कंपनी में आ जाता है तो आप ले लें। तो देयरफॉर प्लीज कीप दिस इन माइंड कि स्टार स्कीमा इज नॉट एन ऑब्लिगेशन, it is good for modeling because I can import this model directly inside the BI tool. ये fact table, dimension ये पूरा का पूरा मैं उठा के as it is मैं BI tool में ला सकता हूँ, और उसको मैं अब उसके BI tool के अंदर भी मैं बहुत सारी मॉडलिंग कर सकता हूँ उस डेटा के ऊपर कि मुझे इसमें से ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। लेकिन मैं ये कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप BI tool के अंदर जाके मजीद डेटा मॉडलिंग करें। मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि भाई आप स्टेजिंग एरिया में जो आपने यहाँ पे काटम काटी करनी है वो आप यहाँ कर लें, सफाई कर लें डेटा की, जो कि एक बड़ा मुसीबत वाला काम है। उसके बाद डेटा को समझ लें, जो फिर एक और मुसीबत वाला काम है। उसके बाद अब यहाँ पे डेटा, क्लीन डेटा को यहाँ पे आप स्टोर कर दें। ये आपकी डेटा लेक हो गई और ये आपका क्लीन डेटा स्टोर हो गया। सही है, समझ में आ गई बात की? सो इसके बाद अब यहाँ पर फॉर्मेट क्या होगा मैंने आपको बता दिया। स्टार भी हो सकता है, सिंपल टेबल्स में भी डेटा आप स्टोर कर लें। इट कुड बी अ सिंपल डेटाबेस एज वेल, जो कि स्टार के फॉर्मेट में नहीं है। अगर आप समझते हैं कि मुझे स्टार से मेरी फ्रीक्वेंसी मैच करती है तो ठीक है, स्टार कर लें। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि स्टार का जो स्टार डेटा में से आपको कौन सा डेटा चाहिए, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस पूरे स्टार स्कीमा में से कौन सी डायमेंशन चाहिए, कौन से फैक्ट चाहिए, वो फिर आपको टूल के अंदर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और उससे पहले आप पाइथन स्क्रिप्ट चला के वो निकाल के भी BI टूल को दे सकते हैं। तो BI टूल में मैं ये ऐसा नहीं होगा कि हमेशा मैं स्टार स्कीमा उसको उठा के दे रहा हूँ। BI टूल में मैं एक CSV भी दे सकता हूँ जिसपे मैंने अपने स्टार स्कीमा से डेटा उठा के उसको जमा करके मैंने उसको वहां दे दिया, मैं कहूँगा एनालिसिस कर लो। सही है। तो ये बहुत सारे डिफरेंट सिनेरियोज हैं, डिपेंडिंग कि आपकी कंपनी ने कौन सा क्या कहते हैं, आपकी कंपनी ने जो है वो कौन सा वो किया है, टेक्नोलॉजी स्टैक कौन सा इस्तेमाल किया हुआ है। अगर SAP का वेयरहाउस यूज किया, यू हैव टू गो विद दैट। मे बी SAP के वेयरहाउस में तो बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज होंगी, ठीक है, कि जो कि आपको पता नहीं क्या कुछ करने को पावर मिल जाएगी ताकि आपका BI का काम कदरे आसान हो जाए। सर SAP में एक अब नया है S/4HANA, उसमें तो लाइक एनालिटिक्स भी है, वो लाइक BI का काम करता है थोड़ा। ये मैं अभी आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा, या आप लोग जरा डिगअप करें और इसको फिर ओन वर्ड्स में लिखें कि भाई ये क्या क्या चीज़ें, क्योंकि मुझे इसका नॉलेज नहीं है, तो हम सबको भी नॉलेज मिल जाएगा इस चीज़ का। सही है कि जो इस वक्त डिफरेंट ऑफरिंग्स हो रही हैं उसका। चलें ठीक है भाई, ये समझ में आ गई बात की? यस सर। चलें ठीक है, सही है। क्लास खत्म कर दें क्या? यस यार आप लोग घर पर हैं तो घर वालों को तो ये नहीं कहना चाहिए ना क्लास खत्म कर दें यार। हाँ, ये तो हमारा हक बनता है जो यहाँ पे आए हुए हैं बच्चे बेचारे सुबह सुबह। क्लास खत्म नहीं हो रही, अभी हम पढ़ेंगे मजीद, ठीक है। सो ये लेक्चर 3 है। अब ये तो खैर बिल्कुल बच्चों वाला लेक्चर, आई एम श्योर कि आप लोगों ने सारा ये पहले पढ़ लिया होगा। कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप बता दीजिएगा। ये अब हम EDA की तरफ आ रहे हैं। आप लोगों को बेसिकली EDA का एक टेम्पलेट बनाना है, या चले मैं आपको एक गाइडेंस दे दूंगा, लेकिन पाइथन पे आपको एंड में पाइथन का पूरा टेम्पलेट क्रिएट करना है जो कि हम फिर बाद में इंडस्ट्री वालों को भी कर सकें। मैंने अभी ये ट्रेंड शुरू कर दिया है कि जो स्टूडेंट्स के जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं और जो असाइनमेंट्स वगैरह ज़्यादा नोटेबल होंगी, तो मैं अब उसको लिंक्डइन पे डाल रहा हूँ। मैंने भी 1-2 दिन पहले शुरू कर दिया है, तो लिंक्डइन पे आप लोग मुझे फॉलो कर लें, और ताकि फिर मैं आपके नाम के साथ बता सकूं कि इसने ये किया, इसने वो किया, तो आपकी अपनी पब्लिसिटी है। और क्या कहते हैं, अभी मेरी वेबसाइट के ऊपर पिछले जो वेयर हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स पिछले सेमेस्टर के, फिर जो बिग डेटा वगैरह के प्रोजेक्ट्स मैं वेबसाइट पर डाल रहा हूँ, तो वो भी मैं सबकी कम्युनिटी के फायदे के लिए मैं इंशाल्लाह अनकरीब शेयर कर दूंगा 1 हफ्ते तक, ठीक है। हाँ, आपके सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आप लोगों का जितना भी काम था वो सारा मैंने शेयर करना है, तो वो आप लोग मुझे फॉलो कर लें लिंक्डइन के ऊपर, ताकि फिर हम उसको प्रोजेक्ट कर सकें इंशाल्लाह ताला। सही है, क्योंकि IBA की देखें, IBA की रेप्यूट है। एक तो ये कि भाई मैं अपनी बात करूं कि मैंने यहाँ पे टॉक दी, ये किया वो किया, तो लिंक्डइन तो बेसिकली अपनी उसके लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है कि मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। मैं भी करता हूँ, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं होता कि भाई वो मेरी तो तस्वीर भी नहीं लगी उसके ऊपर। मकसद मेरा कुछ और होता है कि हमारे इदारे का नाम, पीपल एक्सपेक्ट मोर, राइट। तो स्टूडेंट्स की भी चीज़ों को आगे करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्टैट्स का मतलब क्या होता है कि जी डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए कुछ टेक्निक्स इन अ वेरी लाइट वे,
और BI टूल्स के अंदर भी जो हिस्टोग्राम और बॉक्स प्लॉट हैं वो स्टैटिस्टिक्स के राइट फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स हैं, ठीक है। इनफैक्ट जितने भी चार्ट्स हैं वो स्टैट्स ही आए, स्टार्टेड फ्रॉम बार चार्ट्स एंड पाई चार्ट्स। उसके बाद उन्होंने उससे बिल्डअप करके फिर स्टैक बार चार्ट पे आए, फिर क्लस्टर्ड बार चार्ट पे आए, फिर ट्री मैप्स पर आए, फिर रिबन चार्ट पर आए, फिर सैंकी पर आए। इट स्टार्टेड फ्रॉम स्टैट्स। ये कोई अपनी तरफ से कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आ गई BI टूल्स की, ठीक है। सो ये है रिगोरस मेथड फॉर गेनिंग इनसाइट। यू नो द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन एंड द सैंपल, राइट। और आपको ये भी पता है कि इनके प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। ये थोड़ी टेक्सोनॉमी है उसकी। डिस्क्रिप्टिव में आपको पता है कि वी लुक एट द शेप, जो कि जिसमें हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं, ठीक है। सेंटर जिसमें हम मीन मोड मीडियन की बात करते हैं, और स्प्रेड जिसमें हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं कि डेटा मीन से कितना डेविएट कर रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट। बेसिकली वी वांट टू सी के डेटा रिलायबल है या नहीं। तो द क्लोजर द डेटा इज सेंटर्ड अराउंड द मीन, द मोर रिलायबल इट इज इफ इट फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बायवेरिएट में ऑब्वियसली मैं बायवेरिएट में मैं स्कैटर प्लॉट्स बनाता हूँ, ठीक है, और कोरिलेशंस देखता हूँ और रिग्रेशन भी करता हूँ। तो बायवेरिएट में मेन एक्टिविटी ये होती है। रिग्रेशन डेटा साइंस का भी काम है और स्टैटिस्टिकल, इट्स एक्चुअली स्टैटिस्टिकल प्रोसेस। इट्स जस्ट दैट कि स्टैटिस्टिक्स में हम उसको प्रेडिक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन प्रोसेस वही है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन या मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। मल्टीवेरिएट में ऑब्वियसली मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के इनपुट पे 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स, एक से ज़्यादा वेरिएबल, और आउटपुट पे एक चीज़ जो आपने प्रेडिक्ट करनी है। ये तो पता है ना आप लोगों को सबको, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, सही है। इन्फ्रेंशियल मेथड में हमने 2 चीज़ें पढ़नी है, टी टेस्ट और अनोवा, ठीक है। और इनका मकसद बेसिकली, टी टेस्ट का मकसद ये होता है कि 2 कॉलम्स के मीन्स के दरमियान डिफरेंस देखे कि मीन आपका स्टैटिस्टिकली एक दूसरे से डिफरेंट है या नहीं है। 2 कॉलम्स, डेटाबेस के 2 कॉलम्स में आपस में जो मीन है, उनका कॉलम का जो मीन है, इज इट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर और नॉट। तो फॉर एग्जांपल सेल्स इन फर्स्ट क्वार्टर की सारी सेल्स, सेकंड क्वार्टर की सारी सेल्स, तो 2 कॉलम्स हैं। तो मुझे देखना है कि इनका अगर मैंने मीन कैलकुलेट किया तो इसका मीन आ रहा था 5000, इसका मीन आ रहा था 7000। तो आप कहेंगे डिफरेंस तो है, आई एम डूइंग बेटर इन द सेकंड क्वार्टर। लेकिन अगर मैं स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग करके टी टेस्ट करके निकालूंगा तो वो कहेगा कि भाई ये डिफरेंस तो है लेकिन ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। यानी मैं ये नहीं कह सकता कि ये पॉपुलेशन के लिए बात सही है। आई हैव अ सैंपल ऑफ डेटा, सैंपल में तो तुम्हारी बात सही है, लेकिन पॉपुलेशन के लिए तुम ये क्लेम नहीं कर सकते। लिहाजा फिर आप क्या करेंगे, आप एक दूसरे सैंपल लेंगे। जब तक कि आपका टी टेस्ट आपको ये नहीं बताता कि देयर मीन्स आर डिफरेंट, तो फिर आप क्लेम करेंगे हाँ यार डिफरेंट है। तो हमारे यहाँ से प्रैक्टिस खत्म होगी। ये एक यूज केस है टी टेस्ट का। अनोवा में क्या होता है कि एक न्यूमेरिकल वेरिएबल है और एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, जिसको हम कैटेगोरिकल भी कहते हैं। और मैं ये देखता हूँ कि उस कैटेगोरिकल वेरिएबल के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, वैल्यूज हैं, उसके अक्रॉस उस केपीआई की एवरेज वैल्यू चेंज कर रही है कि नहीं कर रही। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स, क्लोथ्स, कटलरीज एंड फ्रोजन फूड, ठीक है। तो जिन लोगों ने ये 3 चीजें खरीदी उनका पूरा डेटा मेरे पास है। इस टाइम पे किसी ने कपड़े खरीदे 2000 रुपए के, इस टाइम पे किसी ने फ्रोजन फूड खरीदा 1000 रुपए का, सारा डेटा मेरे पास है। तो मेरे पास 3 ग्रुप्स हैं, क्लोथ्स, कटलरी एंड फ्रोजन फूड। और जाहिर सी बात है मैं उनका एवरेज भी निकाल सकता हूँ कि जिन्होंने क्लोथ्स खरीदे हैं उसका एवरेज कितना है। अब जब मैं उन तीनों के एवरेजेस को कंपेयर करता हूँ तो पता चलता है कि तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है। तो मैं क्या क्लेम करता हूँ, यार ये तो इनका एवरेज डिफरेंट है, क्लोथ ज्यादा खरीदे जा रहे हैं, कटलरी कम खरीदी जा रही है, ये फलां ये हो रहा है। लेकिन जब मैं अनोवा टेस्ट करके देखूंगा वो कहेगा नहीं भाई कोई डिफरेंस नहीं है, मोर और लेस द सेम थिंग। तो बिफोर स्टार्टिंग टू कंपेयर मीन्स, क्योंकि मीन हमारे नजदीक एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेजर है स्टैट्स के अंदर और बीआई के अंदर, तो मीन्स के बारे में कोई क्लेम करने से पहले आपको स्टैटिस्टिकल टेस्ट कर लें तो बेहतर है। लेकिन आमतौर पे हम लोग नहीं करते। स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग का हमारे यहाँ कोई रिवाज नहीं है। डेटा साइंटिस्ट वगैरह पता नहीं करते हैं कि नहीं करते। अनोवा टेस्टिंग हो गई। अच्छा, इसको हम कहते हैं वन वे अनोवा। वन वे का मतलब है एक स्ट्रिंग वेरिएबल, एक न्यूमेरिकल वेरिएबल। There is also two way ANOVA कि I can take 2 string variables also. जैसे I can take product and product category with respect to sales. तो 2 way ANOVA का भी एक बन सकता है। तो all of these, T is a probability distribution
अनोवा में हम एफ स्टैटिस्टिक कंप्यूट करते हैं, उसकी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सही है। तो ये बेसिकली हम ये चेक करते हैं कि कैन वी जनरलाइज टू द पॉपुलेशन थ्रू द इन्फ्रेंशियल मेथड्स। अब इसका यूज केस क्या बनता है? टी टेस्ट का तो यूज केस इतना ज्यादा नहीं बनता आमतौर पे, अनलेस के डेटा इस किस्म का हो, जैसे आईओटी की रीडिंग इन द फर्स्ट आवर, आईओटी की रीडिंग इन द सेकंड आवर, आईओटी सेंसर की रीडिंग थर्ड आवर, फोर्थ आवर, फिफ्थ आवर। अब हर आवर के ऊपर आप आपस में दो के पेयर्स बना के मीन देखने के, इनका मीन एक दूसरे से फर्क हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि द मीन इज चेंजिंग ऑन एन आवरली बेसिस, अगर मेरा टी टेस्ट कहता है कि मीन उनका सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। सही है, समझ में आ रही बात की? और टी टेस्ट और एनोवा के यूज केसेस बहुत सारे होते हैं, क्योंकि हर डेटा सेट को आप दो चीजों में डिवाइड कर सकते हैं, फैक्ट्स और डायमेंशन। इवन डेट इज आल्सो डायमेंशन, सही है। तो देयरफॉर डायमेंशंस का मतलब है कि वो मेरे पास कैटेगोरिकल वैल्यू आ गई, और फैक्ट का मतलब न्यूमेरिकल आ गई। तो अनोवा के बहुत सारे यूज केसेस आपके पास आ सकते हैं। तो दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड द डेटा, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, बट इट विल इंक्रीज योर अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्प यू इन एनालाइजिंग द डेटा इन अ बेटर वे। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, समरी स्टैट्स, डिस्क्रिप्टिव में हम ऑर्गेनाइज, समराइज, सिंप्लीफाई, प्रेजेंट करते हैं। और इसमें क्या लिखा हुआ है? जनरलाइज फ्रॉम सैंपल टू पॉपुलेशन, मैंने अभी आप लोगों को बताया है, ठीक है, थ्रू द हाइपोथेटिकल टेस्टिंग, ताकि मैं प्रेडिक्शंस कह सकूं, हाँ भाई सैंपल में ये है, सॉरी पॉपुलेशन में ये होता है इस तरह। ठीक है, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। दिस इज द फर्स्ट थिंग, जो कि ये बीआई टूल में भी आपको टेबल्स बना मिल जाए, फैसिलिटी मिलती है। बीआई टूल में भी आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल बना सकते हैं। ग्राफिकल के अंदर बार डायग्राम है, ये जैसे ये परसेंटेज वगैरह निकाल सकते हैं कि क्या क्या प्रोपोर्शन है हर बार का, दैट इज द फर्स्ट थिंग। और पाई चार्ट स्टार्टेड फ्रॉम हेयर, ठीक है। और ये हिस्टोग्राम, ऑल ऑफ यू आर नाउ familiar with that. Histogram is just a distribution of values, not probabilities. They are not probabilities, they are just the distribution of values के उसकी शेप सही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप आ रही है कि नहीं आ रही। प्रोबेबिलिटीज हम परसों इंशाल्लाह ताला ज्यादा तफसील में बात करेंगे। बॉक्स प्लॉट का तो पता है ना सबको, Q1 क्या होता है? क्या होता है Q1? What does that mean? Yes, Q1 is the number, फर्स्ट क्वार्टर सर। हाँ, Q1 is the number जिसके नीचे 25% आपकी रोज लाई कर रही है। 25% values are lying below Q1. It's a number, ठीक है। और ये बीच में येलो जो है ये क्या है? मीडियन है, ऊपर Q3 है। मीडियन सेंट्रल वैल्यू। और IQR is important. Why is IQR important? Why is that important? Sorry? सर रेंज पता चल जाती है कि रेंज पता चल जाती है कि डेटा किस रेंज में है। Not the range. क्वार्टाइल्स के इंटर क्वार्टाइल रेंज के बिटवीन द क्वार्टाइल फर्स्ट कर रहा है, डेटा का स्प्रेड कितना है, डेटा सेंटर के इर्द गिर्द कितना अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, डेटा अपने मीडियन के इर्द गिर्द कितने अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। दैट्स व्हाट यू। अगर ये बॉक्स यूं दब जाए, अगर ये बॉक्स यूं दब जाए तो क्या क्लेम होगा आपका? अगर ये बॉक्स डिस्पर्जन बढ़ जाएगी। हाँ, इसका क्या मतलब? डिस्पर्जन हो जाएगी सर, हमारे जो Q1 और Q3 है वो दूर हो जाएंगे और मिनिमैक्स भी। नहीं, मैं यूं कर रहा हूँ, हाथों को मिला रहा हूँ मैं। अगर Q1 Q3 दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएं, अच्छा, इसका क्या क्लेम करेंगे आप डेटा के बारे में? सर फिर सॉरी कि सर वो सेंटर के बहुत करीब, मीडियन के करीब है। नहीं भाई, वेरिएंस बहुत कम होगी, लेकिन आउटलायर्स बहुत सारे आगे पीछे आ जाएंगे। कि ये जो डब्बे के अंदर जो डेटा है वो आपका रिलायबल डेटा है, जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप बना रहा है। अगर ये डब्बा ही खत्म हो जाएगा तो उसका मतलब है कि आपका इधर भी बहुत बड़ा स्क्यू जा रहा है, उधर भी बहुत बड़ा स्क्यू जा रहा है, तो आपका डेटा रिलायबिलिटी थोड़ी सी उसकी खतरे में है। तो ये तो आपको पता ही ना कि मीडियन इज लेस सेंसिटिव टू आउटलायर्स और मीन इज सेंसिटिव टू आउटलायर्स, ठीक है। तो ये मीन, मीडियन, मोड, और ये उसमें सेंसिटिविटी की बात लिखी है। ये आ रहा है अभी बाद में, ये स्क्यूनेस वगैरह आ रही है, क्यूटोसिस वगैरह जो भी है। तो ये वेरिएंस का फॉर्मूला है। आई थिंक यहाँ पे रोक देते हैं हम, टाइम तो हो गया। चले ये आखिरी बात बताएं कि इस फॉर्मूला में क्या हो रहा है। सर हम इसमें हर पॉइंट को उसके मीन से, मीन स्क्वायर एरर कर रहे हैं, ओवरऑल कॉलम के मीन से हर पॉइंट को क्या किया जा रहा है? डिफरेंस किया जा रहा है।
हाँ ये बात तो आपकी सारे सही है। इससे हो क्या रहा है फिर डिफरेंसेस मैं, का सम निकाल रहा है। हाँ माज आपने सैंपल वेरिएंस। हाँ ओवरऑल सारे पॉइंट्स अपने मीन से कितना दूर है ओवरऑल, क्योंकि आप सबको ऐड कर रहे हैं ना, ओवरऑल सारे पॉइंट्स अपने मीन से कितना दूर है। अच्छा, इट शुड हैव बीन डिवाइडेड बाय n, द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द कॉलम, व्हाई n-1? सैंपल कैसा रही है? सैंपल है तो क्या हुआ? सर इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात नहीं आ रही? नहीं, डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है जब आप स्टैटिस्टिकल टेस्ट कंडक्ट करते हैं, जैसे टी टेस्ट और अनोवा टेस्ट, अभी नहीं आएगा ये। इसमें बात ये होती है, हम n-1 से इसलिए करते हैं कि हमने, प्रकाश ने बात तो सही की है, लेकिन उसकी मजीद एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर हमने ऐसा सैंपल ले लिया है जो एक्चुअल पॉपुलेशन मीन से दूर हो, क्योंकि मेरे सैंपल का मीन शुड अप्रोक्सीमेट द पॉपुलेशन मीन। अगर मैंने सैंपल बिल्कुल कोने से उठाया है और पॉपुलेशन मीन मेरा यहाँ बीच में है, तो देन आई विल नॉट बी एबल टू मेरी वेरिएंस ज्यादा होगी, लेकिन मैंने सैंपल बहुत छोटा उठाया या गलत जगह से उठा लिया है। तो मैं n-1 से इसलिए डिवाइड करता हूँ ताकि मैं उस बायसनेस के लिए मैं अपने सैंपल को खींच के लाऊं इस तरफ, मैं जबरदस्ती अपने वेरिएंस को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। समझ में आ रही बात की, ताकि ये जो अगर मैंने ये गलती की है तो उसका कुछ थोड़ा सा मैं वो कर लूँ, क्या कहते हैं, कुछ उसको मैं कुछ केटर कर लूँ उस चीज को। इट्स समथिंग लाइक दिस के if this is the line, this is your actual population mean, and I take the sample from here, so my sample mean lies here. तो जब मैं इसमें से n-1 यूज करता हूँ तो n-1 से ऑब्वियसली मैं इस चीज को बेसिकली इसको शिफ्ट करता हूँ थोड़ा सा इस तरफ, ताकि मैं इसकी तरफ आ जाऊं अगर मैंने ये गलती की है। तो ये अपने इसका की वजह से, अपने बायसनेस के इफेक्ट को कम करने के लिए आई डिवाइड बाय n-1। ये बात आप याद रखिए, मैंने खान अकेडमी से मुझे पता चला था, ये खान अकेडमी का लेक्चर डाउनलोड किया था, उससे मैंने देखा, मुझे पहले से नहीं पता थी ये बात। तो अच्छा, एक्सक्यूज मी दैट्स सर। यार, एक मिनट, डेटा, यस सर। सर इसका एडवर्स इफेक्ट नहीं हो सकता कि अगर हमारा पहले ही आपने भी जो कोर्स लिया हुआ है ये? अच्छा हाँ, बोले क्या बोल रहे थे, सॉरी। सर इसका n-1 का एडवर्स इफेक्ट नहीं हो सकता कि अगर हमारा पॉपुलेशन मीन से जो हमारा वेरिएंस आ रहा है वो पहले -1 करने से क्या एडवर्स इफेक्ट होगा? अगर -50 करता तो फिर कुछ बात बन सकती थी, एक पे माइनस करने से वो थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा टुवर्ड्स द एक्चुअल। तो ये जुगाड़ ही समझे आप इसको, मतलब वही ना कि अगर वो एक्चुअल के करीब है तो बहुत दूर तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि आई एम जस्ट डूइंग n-1, ये है। ठीक है जी, फिर परसों मिलते हैं इंशाल्लाह ताला, सही है। तो असाइनमेंट मैं आपको परसों दूंगा, जरा बड़ी वाली, और परसों आप लोगों का एक छोटा सा क्विज भी होगा, तो कोशिश कीजिएगा कि क्लास में आ जाएं। टॉपिक जो आज पढ़ाया है और जो परसों पढ़ाएंगे, ठीक है सर। ठीक है। परसों असाइनमेंट भी मिल जाएगी पूरे हफ्ते के लिए और क्विज भी आपका हो जाएगा इंशाल्लाह, सही है।